ये देखिए, फिर से मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूं once again. We at the home Supreme Court of India, as per अजय जी एडवाइस, डेमो ही होनी चाहिए. तो I started on the demo. First I went to the advocate, and second one is the advocate on record examination. So now I entered into this particular column and scroll up these particular part. There are 3 different volume of the leading cases, right? So this is the leading cases, volume 3, volume 1, and volume 2. If I'm going to in volume 3, this is the one volume. It is the head notes of the leading cases AOR examiners. Complete head notes volume 1 is there. But in this part, the list of leading cases is there. How many cases are there? 35 cases included in the first volume. ठीक है? Now, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक सेकेंड, बस मुझे जरा इसके एंड तक पहुंचने दीजिए, इस जजमेंट के एंड तक. Which one is this? It's a केशवानंद भारती. Okay, मैं थोड़ा और पार कर लूं. Yes, Srad Bedi Chand is there. Sir, good morning. If you're sharing the slide, वो share नहीं हो रही है शायद. Is it so? Yes, sir. डॉक्टर साहब, ये आपको भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर, दिख रहा है. Yes, sir, it is showing, sir. दिख रहा It is showing. है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर. Yeah, दिख रहा है, clearly दिख रहा है. वर्ड भी पढ़ सकते हैं सर पूरे. पूरा पढ़ सकते हैं. शिवानी दोबारा से एक बार आप करके देखें, आ जाएगा. Okay, I'll log in again. Okay, sir. So, ये वो डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए रिलीज किया हुआ है, और क्लियरली ये डॉक्यूमेंट ही एग्जाम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इन 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स. सो द पॉइंट इज दिस: द वॉल्यूम 1, 2, 3 identically without any change, even a single words into them. Am I clear up to this point? Yes, sir. So this is the valuable document which is available into the exam. शिवानी जी, दिख रहा है आपको स्लाइड? सर मेरे पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैं दोबारा से लॉगिन. आई डोंट वांट टू मिस इट. आई लॉग इन आफ्टर सम टाइम. लॉग इन. This is नहीं तो मेरा nothing मिस हो else. जाएगा. जी जी. This is nothing else. But I went to the Supreme Court website. I went to the AOR examination column. ओके सर, मैंने ना आपका वो टैब वो जो था वो
मिनिमाइज करा है तो अब दिख रहा है. नाउ आई कैन सी द एंटायर स्क्रीन. तो देयर इज अ 3 वॉल्यूम. सो मैं उस वॉल्यूम को आपको बस हाईलाइट किया हूँ. इसमें मैं अपना स्लाइड्स कुछ भी इंसर्ट आज नहीं करने जा रहा. I would like to analyze this one for the leading cases purpose only. And the objective is to highlight how to focus and prepare the leading cases paper collectively. तो पूरा डिस्कशन इसी पॉइंट पे है, क्योंकि लीडिंग केसेस एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन करके सबके सामने आया हुआ है, और साइकोलॉजिकली ये पूरी तरीके से एक ह्यूज प्रेशर मेंटेन करके रखता है. जैसे हाथी अपना पैर आपके सर पे या हाथ पे रख दे तो कि जो हालत होगी वो हालत दिखती है मेरी सारे एग्जामिनेट की. However, the fact is little bit different. So for that purpose, I picked up this particular head notes provided by the Supreme Court itself on its website in 3 volumes, which is the literally compilation of head note of leading cases, which would be provided into the examination during the examination for reference purposes. Now I'm just little bit changing the thing and coming to the notification of the EOR examination, which is the last notification or any one notification, specifically the last. See, this is the notification regarding EOR examination before 10th, 11th, 4th held on. Let me just open this PDF. This is having a 15 pages PDF and straightforward. No need to say you must have to read every time the entire notification. Even notice the rule 512 order 4 Supreme Court rules and regulation 2 of the regulation regarding this. So you need to not only focus on this particular rule, you need to consult them every time so that your memory is being refreshed and stronger in your mind. अब आप आइए सीधा सीधा फॉर्म पे this is the leading cases. I guess आपके स्क्रीन पे ये क्लियर दिख रहा होगा लीडिंग केस. Yes, sir. There are the लास्ट वन आ गया है. 64 पे ही पहले डिस्कस करते हैं, ये तो है ही. Why they have chosen this judgments for the EOR exams? This all the list of 64. In my mind, they highlight the different facets of human life, sir. They propound various sir, rights and liabilities of the citizen as well as the state. And sir, they define the contours of and limits of the rights and liabilities of the public, and the interaction of individual rights with the government. It tries to control your rights. So I think that is why they have. मैं थोड़ा सा मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीन रिक्रिएट करना चाहता हूँ. मुन्ना आई गेस हम सबने देखा है. इस पे क्या है, एक डीन होता है और संजय दत्त उस कॉलेज में एडमिशन लेता है और वो बड़ा ही मस्ती में झूमता हुआ कॉलेज के अंदर जाता है. पूरी क्लास भरी होती है, फर्स्ट क्लास होता है, और जैसे ही क्लास में एंटर करता है एवरीवन सेज गुड मॉर्निंग सर.
और फिर वो आराम से जाता है अपनी सीट पे, वहां जाकर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम ये रियलाइजिंग, उस कॉलेज में उसका जो डीन है वो डीन आता है, और लास्ट में डीन से वो पूछता है, सर फॉर्म भरना जरूरी है क्या, यदि कोई तरफ रहा हो तो। डिड यू रिमेम्बर दैट सीन? यस Yes, sir. Yes. उस सीन के दौरान, उससे पहले वो पूछता है, डीन पूछता है बाकी लोगों से कि यहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आज देश के हैं इस टेबल पर, इस कुर्सी पे बैठे हैं, और ना वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि हर को बेस्ट विश करता है, बट वो पूछता है कि एक गुड डॉक्टर की क्वालिटी क्या है, कौन कौन बनना चाहता है। सबको हाथ उठाता है। एक लड़की कहती है कि मैं एक अच्छा भी डॉक्टर बनूंगी। उससे वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है आपने? देन शी आंसर्ड कि मैं सारे पेशेंट को बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करूंगी, और उसे मतलब एक ह्यूमन एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। उसको डीन एक्सप्लेन करता है कि इट इज नॉट द गुड क्वालिटी ऑफ गुड डॉक्टर। डिड यू रिमेम्बर दैट सीन? वो कहता है यदि मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूं तो मेरा हाथ कांपेगा। पॉइंट इज दिस, इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट रीजन चाहिए। वी आर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड एट द टॉप मोस्ट institute of the nation, and this nation is literally competing to, or even leading to, the entire world. The world class institution, Supreme Court of India. Next point is this, rights duties, इस पे बहुत सारे कुछ पड़े हुए हैं। We are not focusing on the rights and duty. वो डिक्लेरेशन है, वो होता रहता है। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया। But what we are capturing into this leading cases, it is the interpretation mechanism. You know, information is the very different part, but moral is the very different part, right? The point is this, how this basic structure doctrine is incorporated, how they struggle to incorporate into them. It is a story. What was the hurdle before that? How they resolved that hurdles in terms of interpretation tools and techniques, and further how they grown till the date. It's not only confined to the basic structure doctrine. Or if basic structure doctrine is chosen, then why this concept? Why not other concept which is available on the constitution? It is because of its impact, and huge impact. And huge impact on what? Every day transaction of business of the Supreme Court or any court in the country. Huge impact. This is having the huge impact. That's what this judgment is incorporated into the list, not merely because of rights and duty. Sir, may I add one point? मैं एक चीज कंक्लूड करूंगा गौरव। Yes, sir. Yes. यहाँ पर ये है, you know, if we are taking onion, there are different layers, right? Experts having the characteristics and speciality of each layers very precisely and accurately. And then only possible to attack on Sargodha. Directly on 45
सेंटीमीटर, यू नो, प्रिसिशन, स्क्वायर एरिया प्रिसिशन। आप समझ रहे हैं, वहां पर सैटेलाइट की भी जरूरत है, ग्राउंड रियलिटी इनपुट की भी जरूरत है, उसके बाद पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है, देन आप देखेंगे आरबी की भी जरूरत है, और वो प्रोसेसन के साथ हिट करने के लिए एन नंबर ऑफ लेयर्स का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के बगैर ये संभव ही नहीं। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? So my point is this: we need to understand the each and every facets of the thing so that we are in the applied world. We have to apply as and when we required. Am I clear up to this point or not? So objective, our objective is very clear, that we will not stop at the only stage of information. हाँ, ये judgment है, इसमें ये है, वो है. This is not our job. It is for the UPSC aspirant और जुडिशियल एस्पायरेंट. कहाँ क्या है वो लिखेंगे. यू नो, यूपीएससी के अंदर बोला जाता है जनरल साइंस, नॉट जीके, जनरल साइंस. यूजुअली हमारे समय में तो वही बोला जाता था. अब यदि नोमेनक्लेचर चेंज हो गया तो अलग है. On that point of time, I was interpreted the difference between my own interpretation. It may be wrong. What is the difference between the general knowledge and general science? If you will think about general knowledge, तो आपसे यदि पूछा जाए कि आगरा कहाँ है, सॉरी ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में. It's a very straightforward knowledge. But if someone will ask कि what was the reason behind to construct this Taj Mahal, तब आपको उस समय के कंटेम्प्रोरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक रीजन को डायग्नोस करना पड़ेगा, वो सारी कहानी कलेक्ट करने. So lot of work is behind. And why we will do so? So that, और उसमें एक और बात है, जो आर्किटेक्ट था उसके हाथ भी काट दिए गए थे. What is the moral of the story? Why? उसके लिए भी अब क्वेश्चन उठता है. why तो साइंस से ही आएगा ना. एंड साइंस सेज क्योंकि ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए. वहां पर आप देखें पॉलिटिकल दिखेगा, जुडिशियल दिखेगा, हर एंगल में आपको लगेगा कि ये अन्याय हो गया. So many things you can find out. That is the science which is behind the Taj Mahal. Even you can take this Qutub Minar also, or even you can take every pertinent event which attract your attention in your day-to-day life. आप सरफेस देख रहे हैं या उसके रूट के अंदर हर लेयर को पास करते हुए रूट तक जा रहे हैं. If you are habitual to go into the root or science or region, or not on the surface but somehow inside that, then you are the very special professional. If you are on the surface, जो दिख रहा है, जो सामने है, वहीं तक है, तो आप देखेंगे कि it is incomplete for the excellent professional. So my point was that, to conclude all these things what I discussed right now, कि हमको उस सारे रीजन जो हमारे काम का है, जो मुझे अडॉप्ट करना है और जो मुझे अप्लाई करना है, वहां पे फोकस करना चाहिए और प्रिसाइसली एग्जामिन करना चाहिए पूरा, और पिकअप वो करना चाहिए जो हमारे लिए काम का है. और वो काम का एट दिस मोमेंट नॉट ओनली द एग्जाम, इवन द रियल प्रोफेशंस है, बट एट दिस मोमेंट एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं वो वहां फोकस करना चाहिए. नाउ हाउ टू डिसाइड कि एग्जाम में वो क्या पूछेंगे,
हाउ टू डिसाइड? बड़े बड़े जजमेंट है, इतना बड़ा केशवानंदा भारती है, एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन पिकअप कर लिया जाएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। देन क्या पूछेंगे? इस सवाल का जवाब यहां पर है कि क्यों इंसर्ट किया गया है इन लीडिंग केसेस। in their opinion there means सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट बोर्ड कि हर AOR एग्जामिनी को, जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको ये सारे लीडिंग केसेस एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। हाउएवर, एक साल के अंदर, अभी आप देखें, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं जरा, हाँ ये देखिए, this is home page of Supreme Court. And this is the judgment column. Latest judgment जो 18/16 को प्रोनाउंस हुआ, इसको मैं पिक कर रहा हूं। Unable, but once again I'll try. Again unable. Let me do the another one. Yes, it is maybe. Yes, it is there. This is non-reportable. एक सेकेंड और मैं आपको दूसरे जजमेंट पर ले जाना चाहता हूँ। 70. There's something problem. This is again non-reportable. I'm going to the last one. Yes. I want to see this logo, which is below that the written is 2025 INSC 1223. This is the month of October, and of course this is the month of 13th October. We have left in our hand November and December. And till the date, the Supreme Court pronounced 1223 judgments. In this year only. And left है अभी 2 महीने. Till then, it will touch around 1500. Did you agree with me? On an average, we can say since this century, 2000 and onwards, 1000 judgment per year है। 25,000 जजमेंट हमारे पास इस साल, इस सेंचुरी का है। But we selected only 80 of Supreme Court itself. Everyone is talking about rights, duty. But again, $1 billion question is why? Why this leading cases only? 86 only. इससे क्या आप मतलब टेस्ट कर पाएंगे, क्या पता कर पाएंगे, क्या समझ आप डेवलप करवाना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक सक्सेसफुल AOR से? सक्सेसफुल मीन्स सक्सेसफुल इन एग्जाम. What is the expectation? This court is not for the application of law only. Every day they are interpreting law and creating a new law for the nation in terms of reported judgment, which is around 1000 every year. नहीं, 1500 आप देख लें, 50-50 का रेशियो लें तो आधा जजमेंट तो पक्का ऐसा है जो नॉन रिपोर्टेबल। इतने जजमेंट तो आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट आ रहे हैं, आखिर क्या इसके अंदर है? So let us pick up the point. Point is this: why this is inserted, what is special with each judgment? Number one. Number two,
what is the impact, its impact on not human beings, not the citizen of the country, but courts in India or even the world for the purpose of interpretation of constitution and statutes. Mainly in all the leading cases, almost 80% judgments are confined to the interpretation of the constitution only. And they defining or designing not only the mechanism, but also the Lakshman Rekha for the judiciary itself. That is called the interpretation or mechanism of interpretation. Am I clear up to this point or not? So we need to capture what is the special part of that, और इनफैक्ट दूसरे शब्दों में मैं कहूं, नॉट स्पेशल, व्हाट इज द यूनिक. स्पेशल और यूनिक में अंतर है. यूनिक का मतलब है वो और कहीं नहीं है. सो इन 86 जजमेंट के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो यूनिक है. आइदर ये एक किसी सर्टेन चीज की शुरुआत है इन इंडियन जुडिशियरी, और ये कुछ ऐसा डायमेंशन देता है, टेक्निक्स देता है जो इंटरप्रिटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और अकॉर्डिंगली और कॉन्जिक्वेंसली और इवन यू कैन से इसका फर्दर स्टेप वो इम्पैक्ट सिटीजन पे आता है. सिटीजन पे इम्पैक्ट जो आता है वो थर्ड राउंड का. एक ये क्रिएशन, कैसे ये क्रिएट हो गया, ये लॉ कैसे क्रिएट हुआ, वी शुड नो, सो दैट नया लॉ क्रिएट करने में आपका रोल हो और इफेक्टिवली आप कोर्ट को असिस्ट करें कि नया लॉ कैसे क्रिएट किया जाए. That's the objective of the leading cases. Effectively, properly, not only the application of law, but also for the interpretation of the judgment. और so many times you will feel कि बहुत कुछ यूनिक आपके लाइफ में आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है, उसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, कैसे आप कोर्ट के सामने पिटिशन लेकर के जाएंगे, कन्विंस करेंगे, और कोर्ट यदि कन्विंस होती है और आगे आर्गुमेंट की तरफ लीड होता है तो वो कैसे सॉल्व होगा वो इशू. That's what this leading is. So we need to capture to that particular part only और precisely. अब देखिए, अब इसी को थोड़ा रिवर्स करते हैं. वो जो पार्ट आप समझेंगे, it would be in a paragraph on the terms of what is uniqueness of this particular judgment and how this is impacting the interpretation of the Indian judiciary, interpretational mechanism of the entire Indian judiciary, including the Supreme Court itself. दूसरा पैराग्राफ जो कोर मेरिट ऑफ द जजमेंट है, और पहला पैराग्राफ जो बिल्कुल इंटरेस्ट डेवलप करेगा व्हाई दिस इज यूनिक. आप कुछ भी जजमेंट लिखें, ये दो पैराग्राफ आपको सर्टेनली 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगा. एम आई क्लियर और नॉट? आर यू कन्विंस विद दिस लॉजिक और नॉट? So our prime objective is to find out or to understand what is its uniqueness, how, why these are unique, not only the uniqueness, even the
one step back कि why this is unique, or your own interpretation कि what is left. इस केशवानंदा भारती की बात करें, this is the highly celebrated judgment. Do you think this is complete judgment? Answer is no. Not my word. Even the judgment recorded it's no. So many clarifications was required, and it was done from time to time with respect to time up to 2007, and finally resolved all the doubts raised into or arises from this Keswananda Bharti substantially. Otherwise, unless until if you will not understand the incompleteness, आपका अगला स्टेप क्या होगा पता नहीं होगा. So the first page for the mentoring is completed now. Now I am asking, during reading the leading cases judgment, have you understand these things? What we have to capture, मतलब किस ऑब्जेक्टिव के साथ उस पे जा रहे हैं या हम पढ़े जा रहे हैं? That's what my point. If we will go through this objective, certainly we will come back after 3 hours or 2 hours. Yes, आज हाथ में कुछ आया. आप समझ रहे हैं कि 2 या 3 स्पेशल इम्पैक्ट आपको, मैंने स्पेशल चीज आपने ढूंढ लिया है किसी पर्टिकुलर जजमेंट में, आपको 3 मार्क्स सर्टेनली एटलीस्ट एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है. जो कि मान लीजिए 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर या 8 नंबर, तो 8 से 12 नंबर तो एनी टाइम एवरीवन इज बीइंग अलॉटेड. मतलब कॉपी देख करके वहां उतार लेंगे तो आपको 8 नंबर तो मिल ही जाने. You need to raise your 4 marks extra on that particular point. And how it would be? It is by reflecting your understanding. हर एग्जामिनर हर लेक्चर में बोलते हैं आप अपने एग्जामिनर रिफ्लेक्ट करो और अपने लैंग्वेज में दे. क्या क्या दे? This is the thing. Why this is unique? Which line leads to its uniqueness? And what is special in their interpretational skill? An interpretational mechanism which is given to the nation, so that you can apply in every judgment. ये इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म है, ये ऐसे इंटरप्रेट होगा इसलिए यहाँ ऐसे होगा. इज देयर एनी लिमिटेशन क्रिएटेड ऑन दैट? इस कंडीशन में होगा और इस कंडीशन में नहीं होगा. देयर आर 2 इंडेड लिमिटेशन. यदि कहा जाता है इस कंडीशन में होगा, इट डजंट मीन कि अगले कंडीशन में नहीं होगा. सो अनदर एंड इज ओपन, इट्स नॉट क्लोज्ड. Sometimes both ends are closed. We need to identify it. कहते हैं ना इस कंडीशन में होगा, कहां लिखा है कि ये ऐसा कंडीशन में नहीं होगा. कल मेरे पास एक केस आया डिस्कशन के लिए, और उसमें क्लियर कट एमएम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ही ऑप्टिमाइज्ड रेमेडी है. केस आपके साथ कभी भी बैठूंगा तो डिस्कस करूंगा. एक लाइन में मैं केस डिस्कस ये करता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ ऑफ द केस. एक आदमी ने ऑनलाइन लोन लिया 3 साल के टर्म्स पे 25% इंटरेस्ट के साथ, एक नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम से, और 1 साल ईएमआई पे करने के बाद वो ईएमआई पे नहीं कर पाया.
ऑनलाइन डिडक्शन होता था। उस कंपनी ने केस फाइल कर दिया जो कि आपका सिस्टम फेल हो रहा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू this 138. 138. This is not the 138 but equivalent to 138. Sir, Payment Settlement Act. Transaction, yes, Payment Settlement Act. और वो जो कंपनी लेंडर है वो है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर ये नॉन सेटलमेंट, ये सेटलमेंट एक्ट, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट एक्ट अप्लाई ही नहीं होता। वो सूट फाइल किया है वहां ट्रायल कोर्ट में। ट्रांसफर पिटिशन वहां अप्लाई होता है जहां जुरिडिक्शन का इशू ना हो। क्लाइंट के अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट है, वहां ओनली एसएलपी लाई करेगा ऑप्टिमाइज रेमेडी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट होकर के आओ, अल्टरनेट रेमेडी पहले एग्जॉस्ट करके आओ। हाउ डू वी कन्विंस टू द कोर्ट ऑन पिटिशन और आउटसाइड द पिटिशन इनसाइड द कोर्ट रूम? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। Of course, there are n number of things are available, even right and fundamental right and this and that. Question is this. This is the unique situation we need to deal. We need to deal with. Otherwise, we do not have knowledge regarding the interpretation mechanism and the culture of the court. We are unable to address it. आपको एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट 3 जजमेंट्स हैं या फर्स्ट 5 और 6 जजमेंट्स हैं, all are very crucial in the world of Indian judiciary interpretation of the constitution as well as the law. Why this केशवानंदा भारती? आप जरा देखिए, केशवानंदा भारती ने पूरी तरीके से इंडियन जुडिशियरी के इंटरप्रिटेशन के स्किल को, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्क्रीट बेस एस्टेब्लिश करके दिया है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं। और इस तरीके से दिया है कि दुनिया के कई देशों ने इनको अडॉप्ट किया है एंड दे गेन देयर ओन स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस। So it is a technique, it is an invention, it is a technique for the entire world of adjudication system. कई फेजेस हैं, बहुत लंबी स्टोरी है। 13 जजमेंट से शुरू होता है और नीचे 5 से शुरू होता हुआ ऊपर, फिर उसके बाद कई जजमेंट पे इंटरप्रिटेशन और करता हुआ नीचे तक आता है। बहुत टाइम लगा है सर। यू नो, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया 1940 50 1950 और 2007 में आईआर कोहिलो आया। आप जरा काउंट करेंगे 2007 एंड 57 इयर्स लगा है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कंसीव करने में प्रॉपरली एंड फेयरली। क्या स्थिति थी 60 साल तक इसके बिना, या 50 साल तक विदाउट दिस? What was the impact on the right of the citizen? What was the impact on the interpretation of the judiciary? Does this not a very high importance judgment and unique and very special? आप दूसरा आपको मैं पॉइंट आउट करता हूं, जरा आप ये देखिए। Last time we discussed why this Manika Gandhi is important, why they given in on top 2. Manika Gandhi का क्या रोल है? Why this Minerva Mills? It is a direct connection with the Keswananda Bharati. Without Keswananda Bharati discussion, you cannot read Minerva Mills.
A Minerva means if you are reading, you must have to refer to the Keswaranda Bharati. Even though Sarat Bridichan, this is the circumstantial evidence. 5 golden rules. क्या इसके पहले कभी था इतनी क्लियरिटी? आज तक ये अथॉरिटी नहीं है. The answer is yes, it is. How they crystallize the symbol, the concept of 5 golden rules for criminal trial. A special condition is for the circumstantial evidence. अब कितने क्राइम के अंदर गवाह होते थे. हिंदी मूवी आप देखें, of course it's a fictitious. तो हिंदी मूवी में कितने जजमेंट, मैंने कितने जगह ऐसे होते थे जहां गवाह आता था, एविडेंस आता था ओरल एविडेंस के लिए कोर्ट में, और आ भी गया तो जिंदा जाता था या जिंदा रहता था टिल द कंक्लूजन ऑफ, या तो उनको पहुंचने नहीं दिया जाता था. आई विटनेस इज द वेरी लेस. सो इन दैट circumstances we need to develop in circumstantial evidence. This is confining to the circumstantial evidence only. This judgment is the backbone of the trial. So 80% cases is confined to the circumstantial evidence. अब वहां 5 गोल्डन रूल्स इंप्लीमेंट करना ही होगा. इंटरप्रिटेशन कैसे करना, इवन अप टू दिस कोर्ट, कब ये कोर्ट एंटरटेन करेगी और कब नहीं करेगी, थिंग्स आर noted there. So these are the very peculiar situation available in this particular part. और criminal is urgent part. किसी के राइट को आप कंफाइन करते हैं, एक्सट्रीम अर्जेंट, उसके लिए कोर्ट कहती है मैं कोर्ट फी भी नहीं ले रहा. And what is the unique in this A.R. Antule and R.S. Nayak? आखिर कब आप इन्वोक करेंगे? जब आपके पास कोई रेमेडी ही नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? यदि कोई रेमेडी है तब आप उसको एग्जॉस्ट करेंगे. रेमेडी मींस लॉ कोई प्रोवाइड कराता है, तब जुरिडिक्शन कहीं क्रिएट किया हुआ है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, तब आप जाकर के ये कहेंगे कि आपको ये रेमेडी है. और सारे रेमेडी, इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन यदि आप एग्जॉस्ट कर लें, अब तब क्या होगा? और यदि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है कोर्ट के द्वारा, तब क्या होगा? न कोर्ट के ऑर्डर से ही यदि कुछ आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, एकदम एस्टेब्लिश्ड पार्ट है ऑन फैक्ट, व्हाट इज द रेमेडी? रिट भी एग्जॉस्ट कर लिए, दोबारा रिट आप ला नहीं सकते. एसएलपी एग्जॉस्ट कर लिए, दोबारा एसएलपी ला नहीं सकते. व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? The route is given to you by this A.R. Antule judgment. आप कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक structure doctrine is nothing but a limitation imposed on the legislature. So the absolute nature of legislation is checked by this basic structure. Limitations. It is a limitation. It is a control over legislation by the constitution itself, not the judiciary, by the constitution itself. और उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे फेडरलिज्म. कहां डिफाइन है सुप्रीम कोर्ट के या कॉन्स्टिट्यूशन में? जरा आप मुझे बताइए. Is this available anywhere?
The answer is no. Does this exist in the the Indian system? The answer is absolutely yes. Then how come? This through this judgment only. Everyone knows about this Kyoto Holohan. ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं आपको किसी भी बुक में या स्टैट्यूट्स में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बट बहुत जरूरी चीज है। ये पूरी की पूरी आत्मा है, स्पिरिट है। क्योतो होलोहन को आप देखेंगे, देयर इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड थर्ड लेयर ओनियन की बात मैंने बताया था ना, यहां पर इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर एक इंग्रेडिएंट लेकर के आया सेपरेशन ऑफ पावर, और उस सेपरेशन ऑफ पावर का क्लियर इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पर, एंड फेडरलिज्म का सेपरेशन ऑफ पावर का क्लियर इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे। यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द इंदिरा साहनी और इवन द एसआर मुंबई, स्पेशली एसआर मुंबई। व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? एल चंद्र कुमार, क्योंकि ट्राइब्यूनल पूरी तरीके से जुडिशियरी का एक आधा हिस्सा लेकर के चला गया है। मोर देन दैट, एन ट्राइब्यूनल में एन नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स आ गए हैं। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट था, वेदर द ट्राइब्यूनल इज इंडिपेंडेंट, सो अल्टीमेटली जस्टिस इज बीइंग अफेक्टेड। कहां दिख रहा है, कहां लिखा हुआ है ये सारी चीजें? इट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग थ्रू द एल चंद्र कुमार एंड इट्स ट्रेलिंग जजमेंट, जहां एल चंद्र कुमार का डिस्कशन है। इवन क्योतो होलोन की बात करें, क्योतो होलोन में क्या था? It was regarding insertion of 10th schedule into the constitution. What is this 10th schedule? हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो आपने देखा है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में यदि कोई चेंज करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर का पार्ट है तो वहां का स्पीकर और जो भी चेयरपर्सन है हाउस का, वो एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और इनिशिएट करके उसको डिसाइड भी करेगा। और इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन में जुडिशियरी का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जुडिशियरी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू दिस, दिस मैटर कैन नॉट रेज इनटू द जुडिशियरी, कैन नॉट। क्लियर एक प्रोविजन इंसर्ट किया। इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सॉरी बॉस, डू योर ओन बिजनेस। आपका काम है लॉ बनाना, आप लॉ बनाइए, मेरा काम है एडजुडिकेट करना, वो मैं करूंगा। यू कैन नॉट इनक्रोच इनटू माय डोमेन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। योर पावर इज कन्फाइंड, पावर एंड एक्सपर्टीज इज कन्फाइंड टू मेक द लेजिस्लेशन, and my job is to adjudicate or interpret it. यदि आप जुडिशियरी को पूरी तरीके से बैन कर दें और ब्लॉक कर दें यहां से, तो ये तो वो ग्रे एरिया हो गया कि जहां पर जस्टिस की कोई संभावना ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव से लेकर के एवरीथिंग इज बीइंग टू बी फेल्ड। तो उस पर्टिकुलर क्लाउज को जिसके अंदर जुडिशियरी को बैन किया गया था या टोटली डिवार किया गया था अप टू द सुप्रीम कोर्ट, उसको स्ट्रक डाउन किया गया इन दिस क्योटो होलोहन जजमेंट के अंदर। हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बोला कि आप एडजुडिकेट करो, दिस इज योर ओन डोमेन, इंटरनली यू कैन डू दैट, बट यू कैन नॉट क्लोज द एंटायर वे। सो उसके बाद हम हैं बैठे हुए, ये हमारा एक्सपर्ट जॉब है एंड आई विल डू दैट। आई विल नॉट मेक लेजिस्लेशन। आप आपका काम आप करो, हमारा काम हम करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है।
हमारे इंटरनल प्रोसीजर के लिए यदि कोई चीज की जरूरत है तो हम कर लेंगे, और आप कर लीजिए। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे पावर दिया सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाना, तो वो हम बना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारा इंटरनल प्रोसीजर है। आपका हाउस कैसे चले, आप रूल बनाओ, बट पार्लियामेंट को भी ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, प्रोफेशनल बॉडी है। नेशन ऑफ द विल वहां से निकल करके आता है, विल ऑफ द नेशन। और सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली एग्जामिन करता है, क्योंकि इसके तो प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबसे पहले बाउंडेड है, इम्पार्शियल, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सो यू कैन नॉट डिवाइड इट। उसको उन्होंने स्टक डाउन किया, एंड इस ग्राउंड पे स्टक डाउन किया कि सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नोटिस करने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना सेपरेशन ऑफ पावर है, ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, and it was the basis of a shutdown of that. What is that? These are, यदि केशवानंद भारती नहीं होता तो किसी सूरत में ये क्योतो होलोन आ नहीं सकता था। नॉट इवन एसआर मुंबई, नॉट इवन मिनर्वा मिल्स। क्योंकि we used the concepts developed and binded into the basic structure doctrine by the way of basically in the Keshavananda Bharati and crystallized up to this IR Koilo. That's what this is important. कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बीच का डिफरेंस, एक्सप्रेस जो है उसके बिहाइंड बहुत सारे कुछ इम्प्लाइड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इम्प्लाइड है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर। सो यदि आप क्योटो उल्लंघन पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर एंड द रोल ऑफ द ईच ऑर्गन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है वो स्पेसिफाइड है। बट ये जो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है which is not an absolute terms, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल वर्ल्ड से ही इमर्ज होता है, इंटरप्रिटेशन वर्ल्ड से ही इमर्ज होता है, एंड दिस इज अ कंडीशन, कंडीशनल प्रेसिडेंट। विदाउट ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट हम इसके आत्मा को पकड़ ही नहीं सकते। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की यदि आप बात करें और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन दो फ्रेज का इंटरप्रिटेशन मल्टीपल टाइम्स हुआ। इवन मनेका गांधी इज टू अप टू दिस पर्टिकुलर पुट्टास्वामी 9 जजेस बेंच जजमेंट, प्राइवेसी जजमेंट। अब बहुत सारे लाखों जजमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 21। Every time they are adding into something, expanding this particular box called life and liberty. Life means quality life, life means bina patake ki life, life means free air, life means this, life means that. And every time for the purpose of interpretation, we are looking this Maneka Gandhi, we are looking this Putas. Why this is important? Why this is inserted into in your list? Something is there which is directly connecting to the constitutional spirit, but not expressly available into the constitution itself or even the statutes, as and when the situation is required.
ऑफकोर्स हर नई कहानी में एक नए टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिफरेंसेस के रिक्वायरमेंट होते हैं. दैट्स व्हाट द वेरियस जजमेंट आर देयर. जो एक पर्टिकुलर इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है. इवन क्योतो के बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं. इवन अभी हमने एस्टेब्लिश किया टॉप 10 के अंदर ही कैसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व है मिनर्वा मिल्स के अंदर, इवन क्योतो के अंदर और इवन एसआर मुंबई के अंदर. ऑल आर द लार्जर जजमेंट. सो यदि आप इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, एग्जामिनर के ब्रेन में आप कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि आप ये चीज जानते हैं, विच इज थोड़ा सा अलग है, जो आपको कहीं किताब में नहीं दिख रहा है. कितने पॉइंट्स में आप लेकर के आते हैं, वो आपके मार्क्स को पक्का रेज करेगा. Am I clear up to this point or not? So, coming to the point back, once we are reading to any judgment, पढ़ने से पहले हमको क्या तैयार करना है. आपको एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आप कैसे कहाँ फोकस करें वो समझें. यदि आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट अपनी समस्या को लेकर के बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे वो प्रॉब्लम, उनके वकील साहब ने एक दिन इसको डिले दे दिया, दूसरे दिन वो जवाब ही लेकर के नहीं आए, वो जानबूझ करके ऐसा कर. लेकिन ये पॉइंट आप पिटिशन के अंदर नहीं ले सकते. ले भी सकते हैं तो डिफरेंट फॉर्म पे जाकर के लेंगे, जब आप रिट में जाएंगे कि इंटेंशन उनको जब एस्टेब्लिश करना होगा तब. सो द वर्जन ऑफ क्लाइंट, अब बीच में जो मेडियोकर हैं, वो जो आपके पास आते हैं कहने के लिए, ये खास करके क्लाइंट की बात कर लें और स्पेशली इन ट्रायल कोर्ट की बात कर लें, तो क्लाइंट अपना पूरा दुख दर्द आपको उड़ेल देगा, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड यू नीड टू सेलेक्ट देम or sometime enhance them and put into the petition and further clarify the same into before the court. उसके बाद यदि कोर्ट रिजेक्ट कर दे, तब वो हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच करेगा और हाई कोर्ट को सिर्फ ये कन्विंस करना है व्हाट डिड रॉन्ग द ट्रायल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड अवेलेबल. और वो भी रिजेक्ट कर दे, तब आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे. और यहाँ एक अलग तरीके का पिकुलियरिटी है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि योर क्लाइंट्स राइट इज इन्फ्रिंज्ड. क्लाइंट तो पूरी कहानी कहता जाएगा. पॉइंट और एनोलॉजी ये है कि ये जजमेंट डिफरेंट रोल के लिए अलग अलग तरीके से, यदि हाई कोर्ट के लॉयर को ये जजमेंट दे दिया जाए, वहां पर ट्रायल कोर्ट के लॉयर को दे दिया जाए या हाई कोर्ट के लॉयर को दे दिया जाए या हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को दे दिया जाए, दे आर बाउंड टू फॉलो इट. इफ नॉट, देयर इज वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस. यदि कंडीशन और केस अप्लाई करता है, मैप करता है प्रॉपरली, फैक्ट मैप करता है, देन दे आर बाउंड टू. और यदि वो नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवर्स कमेंट भी करता है, रेमेडी भी है, वो रेमेडी एग्जिस्ट भी करता है. But the same thing, if sometimes in future, if you will realize there is something wrong in AR Antule, it would be overruled. कैसे? Who will do that? Who will take the initiative? You. So आपको वो एंगल भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं, क्योंकि ये सवाल कहीं नोटेड ही नहीं है और इसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा. किसी भी सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ. लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, वो कहता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, इनहेरेंट पावर, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से. बट अल्टीमेटली इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुझे जस्टिस इंश्योर करनी.
तो पहले तो स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा ना कि जस्टिस इन्फ्रिंज हुआ है, जस्टिस फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो बहुत सारी चीजें और बहुत मल्टीपल टाइम्स में एक जिस बेस को हम ये ढूंढ रहे हैं, लॉट ऑफ जजमेंट के लिए वो खुद ही एक बेस बन करके आए। तो वो जजमेंट सर्टेनली पता होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए। अब इवन मफतलाल इंडस्ट्री विशाखा को देख लीजिए, ये क्या है, विशाखा को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? इट वॉज द वर्क ऑफ लेजिस्लेटर, उन्होंने किया ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम consistently from decades to decades, rights is being infringed. They are duty bound to form that. Duty bond means directive principle of state policy. अब बहुत सारे कन्वेंशन को इन्होंने साइन कर रखा था, इंटरनेशनल कन्वेंशन को, लेकिन रूल नहीं बना रहे। सुप्रीम कोर्ट इनके जुरिडिक्शन को फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर द पुटिंग द गैप, ये विशाखा जजमेंट लिखना पड़ा, एक गाइडलाइंस लिखना पड़ा, और इन्होंने कहा टिल देन, जब तक आप लॉ नहीं बना ले, हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके से सिटीजन के राइट्स को इन्फ्रिंज होते नहीं छोड़ा जा सकता है, एंड आई एम ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। सो दैट्स व्हाट वी क्रिएटिंग द गाइडलाइंस अंटिल यू नॉट फ्रेम द लॉ। सो यदि आप ये लिखेंगे कि विशाखा में ये जजमेंट हुआ और ये लास्ट कंडीशन अंटिल नहीं लिखेंगे, तो आपकी कंप्लीटनेस कैसे टेस्ट होगी वहां पे? और अल्टीमेटली आफ्टर द डेकेड्स गवर्नमेंट फिर से उसको बना करके लाई, लेजिस्लेशन विशाखा जजमेंट पे एक स्टैट्यूट्स लेकर के आई। तो जितने भी एक ट्रैक ट्रेंड है, उसको यदि आप लोकेट कर लेते हैं और उसके सारे मतलब माला में पिरो लेते हैं सारे फूल को, बीच में लॉकेट माला अलग सा होता है, तब एक अलग ही फ्लेवर दिखता है। नॉट इन आइसोलेशन, देयर इज इंटरकनेक्शन, आइसोलेशंस, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट लाइन पे। और बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज द चेंज इनटू द इंटरप्रिटेशन, व्हाट एनहांस, हाउ नैरोड। सो इस चीज को कैप्चर करना बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर, क्योंकि कहीं भी वो वर्ड में नहीं होता है कि ये कहा जा रहा है, और एक वर्ड का मीनिंग ये निकलता है कि ये लिमिटेशन इंपोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर टाइट कंपार्टमेंट, समझते रहिए आप, नथिंग एलैबोरेटेड एंड एक्सप्लेन, बट चेंज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, वो एक अलग है, आप समझिए। लेकिन उसके पीछे पूरा रीजन एक्सप्लेन किया होता है, इस लाइन के पीछे पूरा रीजन एक्सप्लेन होता है इन अ जजमेंट व्हिच इज कॉल्ड द रेशियो। मैं दूसरा लाइन कर, ऑल रेशियो को आप कैप्चर कीजिए अंडर आर्टिकल 142, दिस इज द वन पार्ट। लेकिन वो सारा रीजन कहां कनेक्ट होता है, दिस इज मच मोर डीपर पार्ट एंड रूट पार्ट। वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, कहां कहां वो चेंजेस हुआ, डिफरेंट एंगल से आपको एग्जामिन करना है और अकॉर्डिंगली वहां पे जाना है। आप जरा देखिए, इवन आपका ये, आपको थोड़ा और स्क्रीन पर मैं नीचे करूं यदि वो आ पाए तो, नहीं, अभी अभी हमने देखा यारंतुले, एंड नो वन कैन रीड अशोका रूपा हुर्रा विदाउट यारंतुले, and why Yarantule is required, sorry, Rupa Asoka Hurra is required. Under Article 142, they have created one jurisdiction, permanent jurisdiction created for the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के सारे जुरिडिक्शन किसने क्रिएट किए, कॉन्स्टिट्यूशन ने या लेजिस्लेटर ने?
by the way of statutes and constitution, by way of the constitution itself. सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन खुद क्रिएट कर लिया. Does this wrong? Does they can? Supreme Court can create their own jurisdiction. Even the divorce the provision of law, existing law. Where is the separation of power? But at the same time, rights of the citizen is being infringed. Injustice is going on. And Supreme Court silently रह सकता है, चुपचाप देखता रहे? The answer is still not Supreme Court. बाकी सारे कोर्ट देखता रहे? The answer is yes, they can, because they does not have 142. Constitution itself इसको सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पोजीशन इसलिए दिया हुआ है कि वो सारे सर्कमस्टांसेस जो जस्टिस इंश्योर करने के लिए रिक्वायर्ड है और अदर जगह अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ है. 32 के पावर्स या 142 या 129, these are the plenary judice, even the 136. तो इस तरीके से समझना तो जरूरी है. रूपा सोकाहुरा में क्या है और AR अंतुले में क्या है? दोनों केस में कोर पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, खास करके AR अंतुले, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर से आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 दोनों वायलेट हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसके वजह से AR अंतुले का आर्टिकल 14 वायलेटेड है एंड आर्टिकल 21 दोनों वायलेटेड, इवन आर्टिकल 22. मतलब ये है कि उसके कुलीग्स, AR अंतुले जो एक्यूज्ड हैं, उसके कुलीग्स एक्यूज्ड को राइट ऑफ अपील दिया गया है इन द हाई कोर्ट, और इसको राइट ऑफ अपील इसका खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सो इक्वालिटी कहां है? इक्वालिटी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि यहां पर रिव्यू एग्जॉस्ट हो चुका है. व्हाट लेफ्ट? मतलब क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है कि यहां इन्फ्रिंजमेंट है बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट and we do not have remedy. So justice is being infringed. So what is the remedy? And what is the route to create the remedy? So fundamental right infringe होगा तो आप ये कहेंगे कि आप रिट लेकर के आए 32 के अंदर. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सॉरी, we and high court are not the state under article 12. So by default, we can't infringe your right at all. You cannot take the writ. But yes, आपका right infringe हुआ है, that I can correct it. If there is wrong, remedy is available. There is नहीं है तो हम create करेंगे. किसी भी मैनर में, किसी भी फोरम में, किसी भी पिटिशन में आप मेरे नॉलेज में ले आओ, हम करेक्शन कर लेंगे. And that is called the ex dividio justitia. We will invoke them, which is the part of Article 142. But sorry, I am not the state. Because reason is because I am not infringing right of any citizen. Even we are further ensuring their rights. Mistake होता है. That's the Yarantule. So Rupa Sogaura के अंदर the same thing was repeated. Even the review was exhausted.
बट एस्टेब्लिश पार्ट था कि यहाँ भी राइट इन्फ्रिंज हुआ है कोर्ट के ऑर्डर। तब कोर्ट ने वहां एक अलग रेमेडी क्रिएट किया फॉर द टू इंश्योर जस्टिस। इट वाज द क्यूरेटिव कंडीशन व्हिच इज वेरी लिमिटेड। तो क्यूरेटिव इज द वेरी स्पेशल लाइक बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इवन द स्टैट्यूट्स। Am I clear up to this point or not? Why not? The examiner will test the understanding on this review petition precisely, क्योंकि ये तो और कहीं है ही नहीं। ऑलवेज ओपनिंग में हम लोग लिखते हैं, सो इट इज इन क्यूरेटिव इज द जुडिशियली इन्वेंटेड टूल्स। कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमने अभी सारी बातें आपको बता दी, आप अपने फेवर का चुनिए, सिचुएशन के हिसाब से रेज कीजिए, फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको अपोजिट में खड़ा करते हैं गवर्नमेंट के साइड, इवन द कोर्ट के साइड। That is the thing which is here into this. So सारे केसेस जो यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक और इम्पोर्टेंट। ये पहला पेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पेज, ईच एंड एवरी जजमेंट इवन एक्सेप्ट समथिंग। रामेश्वर प्रसाद गोयल, it is article 368 का extension है, which is concerned to the SR Mumbai itself. And of course this is a 9 judges bench judgment, and this one is 5 judges bench judgment. So lot of extension is there, और सब कुछ यहाँ पर incorporate किया गया है। So the point is this: if there are 86 judgment in your list, does this really 86? यदि हम इन दोनों को मर्ज करें और एनालाइज साइमल्टेनियसली करें, AR अंतुले और रूपा सोकाहोरा, तो क्या ये दोनों को हम एक के तरह से नहीं देख सकते? इंटरकनेक्शन, इंटरप्ले, does this two or does this one? Even यदि if we are discussing basic structure doctrine, और यदि आप उसको कनेक्ट करना शुरू करें तो मोर देन 10 जजमेंट एक साथ आ जाता है। उसको क्या हम 10 जजमेंट कहें या एक जजमेंट कहें? दैट्स द पार्ट ऑफ सिंगल स्टोरी। चॉइस इज योर्स। सेम थ्रेड इज कनेक्टिंग टू ईच अदर। जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम जस्ट यस। सो आई होप कि आज मैंने सक्सेसफुली आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जजमेंट को पढ़ते समय पूरी ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉपर अप्रोच करना जरूरी है, उसका यूनिकनेस फाइंड आउट करना है और 3-4 पॉइंट से वो फाइंड आउट करना, बाकी सारी कहानियां हैं।
अंडरलाइंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल है ना, उसको कैप्चर करना ज्यादा जरूरी है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू गौरव। गौरव उस समय कुछ कहना चाह रहे थे और मैंने इनको रोक दिया था। So Yes, I sir, have yes, sir. done. I took a long time to सर back कोई to बात you, नहीं सर। but I was need to I was establish something, and yes, I hope डॉक्टर साहब इसको लेंगे क्लियरली और इम्प्लीमेंट आगे बार से दिखेगा। एक प्रेसिडेंट करेंगे सर इसको। एक केस कभी आप करके दिखा दें तो उसको उसकी तर्ज पर हम आगे केसेस करें सर। बिल्कुल कभी- करेंगे सर। नेक्स्ट डेट पे मैं ये- एक थ्रेड पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ हम्म, और करके उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगले सैटरडे को हम लोग बैठेंगे और सिर्फ लीडिंग केस का एक पर्टिकुलर टॉपिक में पिकअप करके उसको कनेक्ट करके मैं बताऊंगा कि हम क्या करते हैं और क्या हमको करना चाहिए और क्या स्पेशल पार्ट और स्पेशल इम्पैक्ट लेकर आए। ठीक है सर। इट वुड बी द गुड एक्सरसाइज। इसका 3-4 एक्सरसाइज मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में वी आर एट द एंड ऑफ अक्टूबर, तो नवंबर एंड दिसंबर मेरा आइडिया ये है कि वी विल फोकस ऑन द लीडिंग। एटलीस्ट एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर खड़ा है इसको रिजॉल्व करें और कनेक्ट करें। लेकिन सर एक बात अभी गौरव ने शुरू में उठाई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ रही हैं कई चीजें। ऐसा ही क्वेश्चन नहीं सर, यहाँ इररिलेवेंट है। पब्लिक वेलफेयर आप मत सोचिए, वो आपका काम नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए सर। हुआ क्या कि श्रेया सिंगल और पुट्टा स्वामी दोनों केसेस के कंपैरिजन में कहा कि हाउ द सोसाइटी गॉट वेलफेयर फ्रॉम इट। अब ये क्या था सर? ये नहीं, उन्होंने जो कहा वो कहने दीजिए ना सर। उनका तो जो वही है पूछ रहा सोसाइटी वेलफेयर के लिए आप नहीं, आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, सोसाइटी वेलफेयर, आप कहानी में जा रहे हैं सर। मैं क्वेश्चन मोरल की बात कर रहा हूँ सर, मोरल की बात कर रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस तरीके से इंटरप्रेट होना है, आपको वहां फोकस करना है। आपकी बात सही है सर। क्वेश्चन तो आप ऐसा स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं सर। स्टोरी उनके लिए रहने दीजिए जो कि स्टोरी सुनना चाहते हैं। आप आपको मैंने क्लियर डिस्टिंक्शन कहा है कि आप वहां नहीं है क्लासरूम में। अभी यू आर एट द परफॉर्मर। आपको कैसे परफॉर्म करना है, वी नीड टू लर्न दैट। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना, आप हमेशा इस लाइन को छोड़ करके वहां पे लैंड अप करें। नहीं, मैं तो और स्पेशली यू आर द परफॉर्मर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। यदि आप ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में जाए, वहां सिंपली अप्लाई करना है इनको, राइटली और रॉन्गली, व्हाट एवर इट मे बी। चलिए सर, ठीक है सर। आपको सोचने के तरीका को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो टेक्निक्स हैं वो मतलब कोर्ट को असिस्ट करना है। यू आर द ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट। ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट, व्हाट डज इट मीन? Consistently you are duty bound case to case to assist the court properly. आप यदि वहां ये ले जाएंगे, उसमें तो इन्होंने ये क्या था, पब्लिक वेलफेयर और एवरीथिंग इज पब्लिक वेलफेयर एंड राइट। What is this against the public welfare? What is the against the public welfare? Sir, they are asked in the question paper. I am just concentrating on that only. हम जो कर रहे वो हैं बढ़िया। ऑटोमेटिकली आएगा सर, वो ऑटोमेटिकली इवन मच डीपर तरीके से आता है। यदि ये इंटरप्रिटेशन है तो पब्लिक वेलफेयर ऑटोमेटिकली इससे कनेक्टेड। यही पूछ रहा था सर मैं अभी। गौरव सर प्लीज। जी गौरव। फिर मैंने सर आपको वैसे आपने सर कवर कर ही दिया था पॉइंट। आई वाज ओनली सेइंग कि सर आप कह रहे थे ना कि 86 केसेस हैं, तो उनमें क्या मतलब कॉमन लिंक है या क्या है। तो सर आई वाज थिंकिंग कि इसमें सर इन केसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में the Supreme Court has played the role of guardian of constitution and it has stood against legislative overreach. नॉट प्लेड, इट इज अ ड्यूटी बाउंड। डोंट से लाइक दैट। माने वो प्लेड जो है वो ऐसा लगता है मतलब प्लेड एक गलत वर्ड हो गया। स्टेडियम से निकल कर आकर के कुछ खेल गया, नहीं। दे आर ड्यूटी बाउंड। जी, जी, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। दे आर द गार्जियन। दे आर द गार्जियन, नो नन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। यस सर। समझे? सो देयर प्राइम ड्यूटी है, मतलब उनका अपील डिसाइड करना, तो वो मतलब माइन्यूट पार्ट है। मेन ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को एक्सरसाइज करना, जी सर, इंटरप्रिटेशन, जी। है ना? सर एक तो और वो मेरा तो क्वेरी दिमाग में आ रही थी, पता नहीं कितनी सही है गलत है, पर मैं पूछ लेता हूँ। When you were discussing article मैं 142 ये चीज कह रहा हूँ, मैंने एक सेकंड जी रोक सर रहा जी। हूँ आपको। मैं जी सर एक जी चीज जी। हमेशा कहता हूँ,
अपने किसी भी वर्ड में आप जो कोई भी वर्ड एक्सचेंज करें, कौन सा वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे sir, यहाँ definitely. सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुआ करते थे और जो चीफ जस्टिस बनकर के रिटायर हुए वो थे मिस्टर बोबडे, महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते, जस्टिस बोबडे। कोविड के समय में यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था विनोद बोबडे। दूसरी कहानी सुना रहा हूं, दिस इज माय कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आर्गुमेंट चल रहा था, 5 जजेस बेंच बैठे हुए थे। उन्होंने बोला है कि मुझे, मतलब कोर्ट पूछती है कि आपको आर्गुमेंट में कितने टाइम चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे 25 मिनट चाहिए। बाकी लोग जो भी है, जो 25 मिनट यदि कहेंगे तो वो 2 दिन ले लेते हैं, लेकिन ही कंक्लूडेड हिज आर्गुमेंट डॉट शार्प ऑन 25th मिनट। After making each and every point very clearly to the court. Within 25 minutes, and he said, and he concluded, and court appreciated on that point of time. And on कौन थे उस समय, किनका कोर्ट था? इट वाज रंजन गोगोई, आई गेस रंजन गोगोई का कोर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोर्ट। और वो जजमेंट भी आया है, मैं आपको जजमेंट में दिखाऊंगा। तो एंड आई वाज देयर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मेरा पैशन होता है, तो मैं हमेशा जाकर के बैठता हूँ, शुरू से पिछले 10 साल से मेरी आदत है। तो वहां पर हमने देखा, कोर्ट ने इनको अप्रिशिएट भी किया और पूरी तरीके से 25 मिनट के अंदर इन्होंने जो शब्द सेलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड कंपाइलेशन ऑफ सेंटेंस वाज सो ब्यूटीफुली कि एक एक लाइन से क्लियर एंड प्रॉपर मैसेज जाता था। Now he is no more Justice, Senior Advocate Binod Bobde. बट मुझे वो हमेशा याद रहेंगे इस चीज के लिए, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वहां पर ये चीज आए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्ड, जो आपको मेरे आंसर सीट में भी दिखेगा कि मैं बहुत कम लेकिन एक सटीक लिखने की कोशिश करता हूं, जिसमें कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी हो। कंफ्यूजन इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन आवर प्रोफेशन। वो सामने वाले को तगड़ा स्कोप दे देते हैं हम कि भैया फ्रस्ट्रेट कर दो। तो वर्ड को सेलेक्ट करने बहुत फेयरली एंड प्रॉपरली, कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो पैनापन अपने आप आ जाएगा। पॉइंट वाज दैट। गौरव जी फिर कंटिन्यू कीजिए आप। Sir, I have taken this point in the right sense. And sir, I just wanted to know, मैं सर आप जब डिस्कस कर रहे थे 142 के बारे में, सर आई जस्ट इमेजिन कि सर क्या जो सरकार है, क्योंकि सर ऐसे आपने बताया कि 142 इट हैज बीन कॉन्फर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सर क्या सरकार ये राइट, मतलब ये जो 142 है, कैन इट टेक अवे, हटाई दे इसको? No, once I और am basic saying, structure, see, so many times we have discussed at this forum, certain provision of law is the plenary provision which cannot taken away by the parliament. आप ये कहें यूनियन जुडिशरी चैप्टर, ये जो है, मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, यूनियन जुडिशरी को डिलीट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हो, खत्म करो कहानी, बहुत सर परेशानी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, ये हाई कोर्ट जुडिशियरी टर्म्स को ही हटा देते हैं लोग, सबको ट्राइब्यूनल बना लेते हैं। कैन वी डू दैट? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पार्लियामेंट तो कुछ भी अमेंड कर सकती है और डिलीट कर सकती है, कर दो।
यहाँ क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इटसेल्फ कहता है कि आप जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, सारा सिस्टम उस प्रियम्बल के लिए वर्केबल है, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, अब आप ये कहें कि यदि पार्लियामेंट ये कहे कि चलो अब मुझे कुछ नहीं करना, पूरा पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेशन का जो चैप्टर, उसी को हटा देते हैं, ला जाओ जो करेगा स्टेट करे, हम नहीं कुछ करें। कैन दे डू दैट? अगेन नॉट। तो द क्वेश्चन यहां पर ये है, ये कैसे नहीं कर सकते? दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। That's what explained in the IR up to IR Coelho from Kiswandava. Certain provision ऐसे हैं regarding judiciary पे फोकस करूं मैं, which cannot be curtailed or removed, which cannot be curtailed or removed. That is called the plenary jurisdiction. Plenary jurisdiction means absolute jurisdiction, not absolute. Absolute कहना ठीक नहीं होगा, absolute का मतलब अलग हो जाता है. These are the plenary jurisdiction which cannot be curtailed. Article 32, Article 129, Article 136, Article 142, these are the very special provision. Neither it can be curtailed or removed from this constitution book. That is why whatever is this jurisdiction, that is why this is called plenary, P-L-N-E-A-R-Y. Once the word plenary is tagged, meaning thereby it can't be removed. It's the most important part of that constitution. यदि इन सबको हटा दिया जाए, पूरी की कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ही खत्म हो जाएगी. It can't be touched. And that's what this is declared as basic structure of the constitution. और thereafter मतलब उसके बाद 73 के बाद तो और भी नहीं मैंने इसको टच किया जा सकता, अब तो बिल्कुल नहीं. बताइए. सर कैन दे, इफ दे कैन नॉट, मतलब इसको अगर हटा नहीं सकते सर, can they impose some fetters on this jurisdiction or not? This is the self-imposed. Whatever is this self-imposed. वो केस टू केस में क्यों दिया गया है पहले उसको तो आप समझिए. सेल्फ इम्पोज करते समय पूरा रीजन डिस्कशन होता है ना, क्यों आपको उसको डिस्टर्ब करना है? जस्टिस को फ्रस्ट्रेट कराना है या उसको उसके बगैर आप जस्टिस इंश्योर करा सकते हैं तो कराइए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात. कैन वी डू दैट? देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्टिव. ऐसे ही नहीं चुन लिया गया है कि हाँ भाई चलो उसको भी ले लेते हैं. Without any reason, nothing is inserted into the constitution. और बहुत कॉन्क्रीट और हाईली डिबेटेड रीजन होता है, वेल लॉजिकल. और बताइए, आई डन फॉर द डे, क्योंकि आज मुझे 7 बजे पक्का कंक्लूड करना है 5%. बी स्ट्रिक्ट ऑन द टाइम. यस यस. क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो मे बी एक्सटेंडेड, क्योंकि कई जजमेंट हैं एक साथ होंगे, क्योंकि एक सीटिंग के अंदर कंप्लीट थ्रेड को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा. बट एनीवे, how was today's discussion? Does this any improvement to thinking to pinpoint on for reading any judgment or not? Ajay ji. डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिलता है या स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है. हमारी सोचने की दायरे को अगर हम बढ़ा सकते हैं और उसको बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं
तो ये हमें एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, हमारी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा। और जाओ, कम से कम सोचने पे आप लोग, मतलब कोई भी आदमी सोचने लग जाए इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो शायद एक नया डायमेंशन पकड़ लेगा, विच इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू प्लान। अजय जी, सर मेरा बेटा इसको पूरी तरीके से टेस्ट कर चुका है, और आज मैंने सोचा था कि इसको इम्प्लीमेंट करूं, लेकिन वो सोया हुआ था, तो उसके वजह से मैंने कुछ किया नहीं। मतलब नेक्स्ट डे आई विल इंश्योर कि वो इसको सेट करे पहले, राइट सर, एंड ही लव टू डू दैट। राइट तो सर, उसका एक्सपेरिमेंट तो मोरली थोड़ा एक्साइटेड भी रहता है। राइट सर। And my point is this: कि next time and further, we saying, asking, what is that? See, what is that I want to explain it literally. This is certain instrument for during discussion. This is the Bluetooth connected with this device with phone, so that कि मेरी voice crack नहीं हो। अजय जी ने इनको इसको गिफ्ट किया है, एंड दिस इज विथ मी सिंस लास्ट 6 months एंड मोर देन दैट। एंड मेरा बेटा इसको टेस्ट कर चुका है, वो यूज करता है, लेकिन मेरी कन्वीनियंस नहीं होती, आकर के बैठ जाता हूँ सीधा, और ट्रेडिशनल तरीका शुरू हो जाता है। तो वंस आई विल स्टार्ट यूजिंग, सर्टेनली वॉइस क्रैक बिल्कुल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू प्रॉपर नेटवर्क ऑफ वाईफाई एंड ऑल। चलो जैसे अभी एंड जैसे अभी आई रियलाइज इन बिटवीन मैं थोड़ा सा इस स्पीकर से दूर कई बार चला जाता था, तो आई कॉन्शियसली जाने की कोशिश नहीं की है, बट इट मे हैपन समटाइम। जैसे अभी आप रख रहे थे ना सर, उसको साइड में रखते हुए हाँ, बोल उस समय मैंने अब वॉइस क्रैक। इस टाइम पे आपकी वॉइस बिल्कुल लो हो जाती है। So that was the idea. So that is the thing for the, for the entire group only. We'll use it since from next and onwards. We'll certainly use it. Right sir. आप बताइए प्लीज। सर मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ फ्रॉम माय टेक अवे फ्रॉम टुडेज वेरी गुड डिस्कशन ऑन, इट वाज नॉट अ डिस्कशन एक्चुअली, आपकी मेंटरशिप जो थी, मैं जैसे आपने जो पहला सवाल पूछा तो उससे मेरा कि ये लैंडमार्क ये इस लिस्ट में क्यों है केसेस, तो मेरा एक इम्पल्सिव आंसर आया था। थैंकफुली गौरव स्पोक बिफोर मी, अदरवाइज वो भी ऐसा। so my impulsive reaction was that probably they are in the list because they are precedents. The court is, we are bound by them, and constitutional benches hain, to further courts are also bound by them. But the insight I got was that yes, Supreme Court can overrule the previous judgment and interpret it further, expand the judgment. So that was my takeaway. एक आपका That's जैसे the दिमाग unique power of the खुलता Supreme है। Court. जी सर, जी That's सर। the unique power of the Supreme Court, Yes which sir। makes मतलब which जो मेरा through letter impulsive, and spirit Supreme जी, Court को supreme बनाता है। correct sir, correct. So that was my biggest takeaway from today's session, that हम खुद ही लिमिट करते हैं अपने सोच को कि ये Exactly, प्रेसिडेंट्स exactly. हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स है, तो टू बी ऑन द इवन सेम शिवाजी में मैं प्लेटफॉर्म आपको एक विद लाइन द बताऊं, बेंच। मैं जी आपको एक लाइन में क्लियरली बतलाता हूँ। दिस इज माय ओन परसेप्शन. I am not convinced with the finding of A.R. Antule that Supreme Court is not the part of history. I am not convinced. सिंपली मैं आपको बतला दूं, रीजन यहाँ पर ये है कि बहुत सारे डे टू डे आज के डेट में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट से राइट का इन्फ्रिंज होना, वो इनॉर्मस है, जो मुझे दिख रहा है। जी सर, तो चाहे करेक्ट। अदर वे इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। आइदर आप इंश्योर कीजिए कि वाकई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ स्टेट, और एनी हायर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज नॉट अ स्टेट, और
ये चीज आप हटाइए कि इट इज नॉट द स्टेट, बट द क्वेश्चन इज दैट कि यदि सुप्रीम कोर्ट स्टेट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यदि आ जाता है स्टेट के दायरे में, तो निश्चित रूप से सारा ऑर्डर की वो साइकिल शुरू होगी चैलेंज होने की, नॉन जी, एंडिंग साइकिल, जो जी, कभी सर। खत्म नहीं होगा। हर ऑर्डर यहाँ का चैलेंज होगा, जो ऑर्डर का आउटकम आएगा वो भी चैलेंज होगा। चैलेंज होगा। जी, 32 सर। और 32 की फ्रीक्वेंसी जो भयानक बढ़ेगी, वो इम्पैक्ट देख करके सोच करके भी मैं दहल जाता हूँ। राइट सर। But the question is this, there would be certain correction for that. Even उसमें से हाई कोर्ट को तो निकालना ही चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर एक है ट्रायल कोर्ट अवेलेबल है, बट हाई कोर्ट इज नॉट द पार्ट। तो समथिंग इज अनकन्विंसिंग, वो टेम्पोररी अरेंजमेंट हो सकता है बट परमानेंट फिक्सिंग नहीं है मेरी ओपिनियन में, एंड इट नीड करेक्शन। आई डोंट नो व्हेन, एंड उस सिचुएशन में हमारा क्या रोल होगा, आई डोंट नो, मे बी वी कैन प्ले और मे नॉट, बट एटलीस्ट मैं आप लोगों के ब्रेन में भी तो उसको डाल ही रहा हूँ कैसे न कैसे करके, राइट क्योंकि सर। डायरेक्शन का मोड तो है ही। सो यू नो, बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते ना, सरकमस्टांसेस और समय के साथ बहुत कुछ चेंज रिक्वायर्ड होता है, सो वी नीड टू अपडेट इट अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स सर, और व्हाट द मैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जी सर। और सर, मैं इसको आपके पिछले वाले सेशन से भी थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगी, शायद दैट इज क्लैरिफाइड इट मोर, वेयर यू सेड थिंकिंग शुड बी, इम्पल्सिवनेस नहीं होना चाहिए कि आप इम्पल्सिवली एक एग्जैक्टली। जवाब दे रहे हैं। जैसे मेरा भी पहले आई अनम्यूटेड बट आई डिड नॉट स्पीक, बट इम्पल्सिव जवाब ऐसा होता, लेकिन अगर पहले मैं सोचती, आई वुड हैव डन सम डीप थिंकिंग ऑन दिस, या मेरे अगर कभी दिमाग में शायद अपने आप से ये सवाल आता भी नहीं, लेकिन अगर आता तो आई शुड सिट एंड थिंक अबाउट इट। सो इट इज कनेक्टेड टू योर प्रीवियस सेशन आल्सो, सो दैट I've been able to connect that to the previous session in this session now. No, last 3 session is purely focused on the mentoring. It's a solid mentoring. Right, Now sir. I Right, entered sir. into the properly mentoring sessions, only because of the Dr. Sahib and all of you who is participate into the rest of that rest of day. आप इसी ग्रुप में रेस्ट ऑफ डे में आप लोग सेम टाइम पे जो एक्सरसाइज करते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, देन नाउ आई रियलाइज कि यू पीपल आर जस्ट पुटिंग योर हार्ड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो 2-2 घंटे आप लोग बैठते हैं, कई समटाइम्स इट मे बी 3 आवर्स एंड अदरवाइज, तो उतना टाइम जब देते हैं, नाउ वो सेट हो गया है। अब ये क्वेश्चन है कि वो टाइम की क्वालिटी बढ़ाई जाए, एक्सलेंस की तरफ अब लीड किया जाए, क्योंकि रूटीन अब सेट हो चुका है, अब उसको इम्प्रूव करके उसको लेकर के चलते हैं। परफॉर्म आप ही लोगों को करना है, मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, और फिर आप लोग, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे इस थॉट प्रोसेस को लीड करके बहुत आगे ले जाइए, सो दैट कि मुझे थोड़ी लगे कि मैं अब टीम का हिस्सा हो चुका हूं। आई एम नॉट द एंड, इट शुड कंटिन्यू। जितनी जल्दी ये अचीव हो उतना अच्छा है, बिकॉज एवरीथिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड ओनली। जब आप कन्विंस कर लीजिए तो हो गया। आज के डेट में मैं देखता हूं इस देश में एनडीए में जो शामिल होते हैं, 19 साल के बच्चे एनडीए में शामिल होते हैं, 2-3 साल में वो कमीशन होकर के आ जाते हैं। मैंने 25 साल का बच्चा, आपके आपके देश का, आपके घर का, वो फाइटर जेट ले जाकर के स्ट्राइक करके आता है, बड़े बड़े मिशन को कंप्लीट करता है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड। देन व्हाई नॉट वी? Everyone is doing their own best, उसका कोऑर्डिनेशन लंबा है तो हम भी कोऑर्डिनेट कर लेना, हम भी तो नेशन के लिए ही वर्कआउट कर रहे हैं। So many motivational part available in our society. डिमोटिवेट होने के भी 100 रास्ते हैं, बट हमको चुनना है कि हमको क्या पिक करना है। सर ये जो 86 जजमेंट है, तो मुझे लगता है सर कि लॉ ऑफ द लैंड सेट करता है सर ये सुप्रीम कोर्ट, कि ये
रूल्स भी सेट करता है, लॉ ऑफ द लैंड से सेट करता है। जैसे कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसकी एक गाइडलाइंस तुम एक जजमेंट से ले सकते हो। जैसे आर्नेश कुमार है, DK बसु है, अगर तुमको FIR करना है, अगर पुलिस अथॉरिटी FIR नहीं करती किसी केस में, तो तुमको फिर ललिता कुमारी जजमेंट तुमको एक गाइडलाइंस बताती साहब आप मुझे ये बात बताइए, हाईली डिबेटेड एंड $1 million क्वेश्चन है, पहले मुर्गी आया या अंडा? है। हाँ, वो भी है ना सर। क्या आया? सर पहले तो अब डिसाइड करना मुश्किल है, पहले लॉ आएगा या सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कैसा करेगा, ये है। वैसे लेकिन तो जो पार्लियामेंट का मुश्किल काम है नहीं, लॉ जो बनाना। मुश्किल नहीं है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मुश्किल नहीं है हाँ, वो बता रहा हूँ। जो स्टैट्यूट के प्रोविजन है उसको सप्लीमेंट करता है जजमेंट, यस यस सर, यस यस बट सेंट्रल पार्ट है प्रोविजन ऑफ लॉ, वी कैन नॉट इग्नोर इट। यस सर। इवन अरेस्ट की जो बात है या आर्टिकल सॉरी सेक्शन 41 जो है आपका सीआरपीसी का, सॉरी सीआरपीसी का, उसके लिए ही इतने सारे इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। एक जजमेंट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे कंफाइन है, ऐसे 100 कॉन्टेक्स्ट यस हो सकते हैं, यस बट यस। लॉ वही है। सो उस लॉ के लाइट में आप सारा कुछ लीजिए। यदि हाँ लीगल प्रिंसिपल की बात करें, गवर्नमेंट जो बनाती है वो पॉलिसी कहलाती है, और जुडिशियरी में जो एक्सेप्टेड पार्ट है, दीज आर द प्रिंसिपल, लीगल हाँ प्रिंसिपल। सर। तो लीगल प्रिंसिपल जो इवॉल्व होता है उसका एक अलग ही पैटर्न, which is applicable throughout, accepted themselves also, यस सर। even they are not violating that part. So उस पर्टिकुलर पॉइंट जो पार्ट है लीगल प्रिंसिपल, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि वो रीयूजेबल है, बार बार यूज होता है। आप चाय बना करके पी लें तो चाय तो वन टाइम यूजेबल हुआ ना, हाँ बट जो पैन है जिसके अंदर चाय बनता है और गैस स्टोव, वो तो मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। यस यस। आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीजें मल्टीपल टाइम्स यूज होती है, और उसमें भी ये देखना होगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मल्टीपल टाइम्स यूज होता है वो यस टेक्निक कि चाय कैसे बनाना है। यस। तो टुडेज डिस्कशन वाज फोकस्ड ऑन कि आपको पहले ये पकड़ना हो कि विच वन इज रीयूजेबल, विच लाइन, विच प्रिंसिपल। और रीयूजेबल मींस जैसे ही आप करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कहाँ यूज करना है। अच्छा, ऐसा सिचुएशन में, अच्छा इस कंडीशन में चाय तो आ गया, बट एट द टाइम ऑफ डिनर, एट द टाइम ऑफ लंच, क्या मैं चाय पीऊं ना? कंडीशन उसका भी एक टाइम एंड कल्चर है, एवरी टाइम कांट बी। सर आपने अच्छा बताया कि वो जो जुडिशियल का लूप होल था, जैसे कि पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट में, तो उसमें फिर ये अपना ये जो गाइडलाइंस आई दैट्स व्हाट द विशाखा में, इंटरप्रिटेशन। हाँ देखिए, विशाखा ने उसको गाइडलाइंस लॉ की तरह लिया जब तक कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना था। यस आपको ये समझिए, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली है क्या इंटरप्रिटेशन? जो लीगल वर्ड है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स, every word cannot be filled up into the statutes or constitution with respect to read with the circumstances. तो यदि circumstances में कोई गैप अराइज होता है, ये होना चाहिए, तो उस गैप को कनेक्ट करता है इंटरप्रिटेशन। वो जो वर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो ऑलरेडी है, उसके पीछे जो चीज मिसिंग है उसको पुट करता है, कनेक्ट करता है बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड दैट इज कॉल्ड द रेशियो, रीजनिंग एंड डिक्लेरेशन। यस सर, यस सर, यस। और रेशियो डिसीडेंसी लॉ ऑफ द लैंड बनता है सर आगे चल के। दैट्स द ओनली थिंग, द रेशियो।
Yes, sir. and that is empowered with the Article 141 हाँ, specifically. आपको एक सवाल समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या चीज सुप्रीम बनाता है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए और बाकी कोर्टों को नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के इंडियन जुडिशरी का चैप्टर में लिखने के लिए आपको दूं, बहुत लोगों को बहुत शिकायत है, एक अच्छा रोबोस्ट बहुत कम शिकायत आगे लेकर के आए, ऐसा इंडियन जुडिशरी का चैप्टर आप क्रिएट कीजिए। दुनिया भर का कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, लाइए और एक ऑप्टिमाइज बना, और आपका एक्सपीरियंस आपके सामने है, आप ऑप्टिमाइज करके देखिए, बना पाएंगे। मैं आपको असाइन करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना है, यूनियन जुडिशरी आप एम्पावर करने की कोशिश कीजिए, बहुत कहानी आपको दिमाग में चलेगा, बहुत कुछ आप देखें। लॉ बनाते समय भी ऐसे ही चलना चाहिए। लॉ किसी इंसान के फेवर में नहीं होता, किसी कम्युनिटी के फेवर में नहीं होता, वो नेशनल एसेट है, नेशनल पॉलिसी है, उसका डिक्लेरेशन है। ये वो डॉक्यूमेंट है इवन गवर्नमेंट कांट बाईपास, है ना। Sir, very nice lecture today, and hopefully we'll get a case from you next week. So that will become a precedent for us for our own cases. डॉक्टर साहब, ये लेक्चर तो नहीं था। नहीं, ये है कि जो इसमें बात बताई गई, मेंटरशिप दिया गया, वो दैट वाज वेरी फाइन सर। बात ये आपने ना कई चीजें ऐसी एलैबोरेट करी जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। ये आपने शुरू में भी कहा, मतलब कई चीजें ऐसी हैं, और मुझे अच्छा लगा। जानते हैं ये तभी होता है ना कि फोकस लॉस्ट कर दे। आप जैसे देखिए, अभी आप जाएंगे कोर्ट, मान लीजिए, तो कोर्ट जाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, केस लगा हुआ है, वहां परफॉर्म करना है, तब तक मैंने अभी के बीच में इंदु मैम का आज यदि मैटर लगा हुआ है 12 बजे का, तो अभी से लेकर के 12 बजे तक उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं होंगी, नेचुरल। और यदि मेरा बेटा मेला घूमने जाए तो कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, वो वहां जाए और उसके बाद वहां पर वो घूमे, कभी ये अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा। तो 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल को आप अपने प्रिपरेशन पे मैप कर लीजिए। व्हाट वी आर डूइंग, हम मेला घूमने जा रहे हैं, नो नो नो, या प्रिपेयर कर रहे हैं, मैटर अटेंड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये है, बट आई एम इनिशियली अभी लग ये रहा है कि हम लोग मैंने वहां जाकर के शायद वो कन्वर्ट हो रहा है मेला वाले पार्ट। नहीं, यदि हम अपना फोकस मिस करें, मतलब कहने का मतलब इंदु मैम का मैटर है 12 बजे और उनको मैं 11 बजे कहूंगा मैम चलिए ना कुछ लंच करते 11:50 में, वो कहेंगे नहीं जाएंगी, नहीं अभी नहीं, पहले मैटर करता है। नहीं जाएंगी वो। तो द फोकस, ऑल अबाउट द मैटर ऑफ फोकस एंड प्रायोरिटी। बट दिस इज वेरी गुड। भले ही कुछ नहीं हो, कोर्ट में जाएं और कोर्ट में सामने वाला आकर के कहे कि जो कि मैंने ऑन द फिजिकल बेसिस काइंडली एडजॉर्न, और कोर्ट एडजॉर्न कर दे, उसके बाद इंदु मैम कॉफी पी सकती है। बिल्कुल। नहीं सर, आज अच्छी बात ये थी कि दोनों यंगस्टर्स गौरव, तो आपको रोल जो है ना, वो रोल पता होना चाहिए कि, और फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। फोकस एंड रोल का कॉम्बिनेशन है ना, अपने आप में आपको, और आप जीते हैं एवरीडे जीते। नेचुरल सर। कई बार मतलब प्रेशर में, कई बार जानबूझ करके। अब सोचिए ना, जज भी आता है वहां पे बैठता है, वो क्या सोच करके आता होगा कि मुझे इतना से इतना बैठना, पूरी तरीके से वो इंडल्ज रहता है, वो भी फोकस उसका डिस्ट्रक्टेड नहीं है। कोई भी जज को आप देख लीजिए, आप कहिए तो सुनता तो है, रिएक्ट तो करता है, फोकस डिस्ट्रैक्टेड नहीं, एग्जामिन तो करता है ये ब्रेन में। इट्स अ नाइस थिंग सर। तो सिस्टम चलाने के लिए ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, सॉरी ये नहीं कर सकता जुडिशरी, और जुडिशरी का काम वो नहीं कर सकता, और इवन द एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, है ना। दैट इज द सेपरेशन। जिस ऑर्गन को जो काम दिया गया है वो अपना काम करे, ये इंश्योर करना है ऑनेस्टली।
Very nice, sir. Very nice. Hopefully, we will be incorporating, sir. I mean, तो it फ्रॉम gets नेक्स्ट टाइम अब मैं लीडिंग केस में एंटर कर रहा हूँ और लीडिंग केस के 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको जो इम्पोर्टेंट भी है, पर्टिनेंट भी है, उसको मैं कनेक्ट भी करूंगा और आपके सामने लाऊंगा बिल्कुल और फिर आपको हैंड ओवर करूंगा कि आप लोग अब अपना करो। नहीं, बिल्कुल शुरुआत से कर लेंगे सर, क्योंकि लीडिंग केस जो है अगर उसको ढंग से नहीं समझा गया तो हमारा पर्पस हल नहीं होगा। राजू आपने जी खुद ही एक कहा चीज 5 से करना, 7 आपने बार हैंड ओवर नहीं करना till we एग्जाम हमारा आएगा। ये नहीं कि हमने नहीं ये मैम, लिया तो वो हैंड हैंड ओवर। ओवर करना पड़ेगा, ड्राइविंग सीट पे तो बैठाना ही पड़ेगा साइकिल के, मैडम ऐसा अभी है तो साइकिल चलेगी। आपको इंदु जी, सबको हम कैपेबल इनकी बनाना है कि अब सब इनकी लोग 100% ड्राइविंग सीट पे बातें नहीं बैठने मानते की हैं, हिम्मत रखें। 40% मानते हैं, 5% हमारी भी होती है। हाँ, नहीं वो क्लियर है। देखिए एक्चुअली क्या है, वी आर हाँ। नॉट हियर कि हमने किसी को कोई गाउन पहनाना है या किसी को कोई, हमने ये है कि वी शुड बी एबल टू। लेकिन देखिए आज एक डायरेक्शन, एक जो मेरे दिमाग में मैं है वो मैं कल बता रहा डिस्कस हूँ, करूंगी। और मैं बहुत बता अच्छी रहा हूँ, बात अभी है, तक जो सुनिए। है ना, बस में हम लोग सफर कर रहे हैं ड्राइविंग सीट पे मैं। हम्म, अब मैं चाहता हूँ कि हर कोई साइकिल ले, इंक्लूडिंग मी, आगे आगे चले और सब कोई साथ चले। ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप अगर अंडरलाइन करें तो बहुत बेहतरीन तो बात है ये अलग बात है कि एक साइकिल पर 2 भी बैठ सकते हैं, 3 भी, समटाइम 3 भी बैठ सकते हैं। हमने एक्सरसाइज किया हुआ है ये भी। तो 2-3 लोगों के ग्रुप यही तो कहलाती है। पर आपको हम पूरी छोड़ने टीम थोड़ा चले। देंगे सर। इंदु जी कह रही है छोड़िएगा नहीं, छोड़ने हम देंगे ही नहीं सर, कहाँ से छोड़ेंगे आप, हम नहीं छोड़ने देंगे सर। अच्छा खैर, इस बात पे तो आप मुझे पूरा यकीन है। मैं ये कह रहा था कि सर और कुछ चीजें ऐसी हम लोग यही वाली इनकॉर्पोरेट करें जो आज आपने समझाई हैं, उसके बाद देखें जरा इसका रिजल्ट क्या आता है। जी सर। सर देखना नहीं है, यही फोकस ही है, ठीक है सर। नथिंग एल्स। कुछ और आपको दिख रहा हो तो प्लीज बताइए, मैं अभी उसको भी नहीं नहीं, एड्रेस वो अभी करूंगा। हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमने इसे यहाँ implement किया। वी हैव द वन एंड ओनली ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। यदि क्लियरली हम इस चीज को फोकस करके समझ लें, कहानी क्लियर है। सर आई गॉट योर पॉइंट, नथिंग लेकिन अभी फोकस तो करें ना इसको पहले, तभी हम लोग आएंगे ना निष्कर्ष पर। अभी तो हमने फोकस किया ही नहीं है सर। चले वी आर तो डूइंग इट। थैंक you very much, sir. Have a very nice day. हैव अ नाइस डे। Yes, sir. Because you told you have to leave at 7 o'clock, and it is 7:11 now. 7. नहीं मैं